Welcome back to our history period. Last period, I had started the lesson history and the concept of the time, and I had completed the first point, that is division of time and the timeline. Okay, this lecture we just recap what is the division of time and the timeline. There are different methods of calculating time. Time is continuous, we studied this, that is never ending. टाइम कभी भी एंड नहीं होता है, इट इज़ नेवर एंडिंग. देर आर टू पार्ट्स, वी डिवाइड द टाइम इनटू टू पार्ट्स, दैट इज डे एंड द नाइट. And why the day and night occur? Due to the rotation of the earth. Okay, our earth get light from the sun, okay, and earth revolve around the sun. Okay, after that we explain that a period of day time and the following night together make a day. Day is, there is 24 hours day, there is 12 hours of day and 12 hours of night. ये भी हमने पढ़ा था कि we learn that unilinear division of time. That means what? A method of dividing time is known as a unilinear division of time. Which method? That is which method? That is 7 days from Monday to Saturday make a week, 2 week make a fortnight, 4 week make a month, 12 month make a year. In this manner we calculate time in bigger and bigger unit, that is 1 year followed the another, and then when 100 years go back, we say it is, we completed the century, and when 10 centuries complete, we say 100 years that has gone, a millennium is completed. Such method of division of time is known as unilinear division of the time. After that we studied common era or Christian era. The unilinear division of time, year that follow one after the another are arranged in serial order. Okay. In the history books also, the chain of events that follow one after the another is presented in a linear and serial manner. For this usually we refer to the common era. Era means what? Era means what? A long and distinct period of history or event. Okay, common era, we say that Christian era also. We written in short as a CE. CE means common era, or AD. AD means Anno Domini. Anno Domini का मतलब होता है in the year of our Lord. After that we studied the calendar we use today is based on the Christian era. We call the common era. Christian era को हम लोग common era भी बोल सकते हैं. This era began in the memory of Jesus Christ. The first year of this era is the year when it began. It is shown with the number 1. मतलब जब हमने ये जो कैलेंडर स्टार्ट किया, द फर्स्ट ईयर हमने कैलकुलेट किया था, उसका नाम क्या है? द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस ईयर इज द ईयर व्हेन इट बिगिन. इट इज शोन विद द नंबर 1. दैट इज, वहाँ से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया. द ईयर आफ्टर दैट आर इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट नंबर इन द सीरियल ऑर्डर. मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सीरियल ऑर्डर. एंड द फर्स्ट 100 ईयर्स, दैट इज द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस एरा इज रिटन एज 1 to 100 CE. फर्स्ट सेंचुरी हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 to 100 CE और 1 to 100 AD. ओके. आफ्टर दैट द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ दिस एरा इज रिटन एज अ 1 to 1000 CE और 1 to 1000 AD. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. आफ्टर दैट द टाइम बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियन एरा, मतलब ये तो हो गया कि क्रिश्चियन के जीसस क्रिस्ट के बाद हमने स्टार्ट किया ईयर्स काउंट करने के लिए. बट उससे पहले कैसे काउंट किया जाता था? टाइम बिफोर द क्रिश्चियन एरा और कॉमन एरा. द पीरियड बिफोर द कॉमन एरा इज नोन एज द टाइम बिफोर कॉमन एरा. ओके, द पीरियड बिफोर द कॉमन एरा, कॉमन एरा से पहले जो टाइम था उसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, दैट इज BCE, बिफोर कॉमन एरा. और बिफोर क्रिस्ट, दैट इज BC. द ईयर of this period are continued and written in the reverse order.
ये जो बिफोर एरा का जो टाइम है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन एरा बिगिन एट द ईयर 100 BCE। तो फर्स्ट जो सेंचुरी है वो कब चालू हुआ था? 100 BCE एंड एंडेड विद द 1 BCE, क्योंकि ये हम लोग कैसे लिखते हैं? रिवर्स मैन, उल्टा। ओके, 100, 99, 98 लाइक दिस। Similarly, the first millennium before the common era begin at the year 1000 BCE and end with the year 1 BCE. So, the first century before the common era is indicated as 100 to 1 BCE and the first millennium before the common era is indicated as 1000 to 1 BCE. ओके, क्रिश्चियन जीसस क्रिस्ट के बाद जब हमने स्टार्ट किया तो हमने कैसे लिखते थे? हाउ टू राइट? वी 1 to 100 ओके BC। लेकिन ये आफ्टर कॉमन एरा, लेकिन बिफोर कॉमन एरा हम लोग कैसे लिखते हैं? रिवर्स काउंटिंग करते हैं। रिवर्स मीन्स व्हाट? दैट इज 100 to 1 BCE एंड मिलेनियम कैसे काउंट किया जाता है? 1000 to 1 BCE। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मेथड ऑफ इंडिकेटिंग टाइम बिफोर द कॉमन और द क्रिश्चियन एरा। अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिया इधर यहाँ पे। द लाइफ टाइम ऑफ वर्धमान महावीर इज रिटर्न एज 599 BC टू 527 BC। रिवर्स काउंटिंग है 599 टू 527 BC। द टाइम दैट मीन्स द लाइफ टाइम ऑफ एंड द लाइफ टाइम ऑफ द गौतम बुद्धा इज रिटर्न एज 563 BC टू 483 BC। Okay, look here, look at this chart. The chart is given here. This, for example, here is the birth of the Jesus. Okay, after that AD or C common era और Anno Domini यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ओके, 100, 200, 300, 400, 500, ओके, 1000, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग। देखो लुक हियर, BC 100 रिवर्स जा रहा है BCE बिफोर कॉमन एरा और ये कॉमन एरा। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ पॉइंट नंबर 2, नाउ 2.2 इट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड अ मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम। अभी टाइम कैसे मेजर किया जाता है और उसके मेथड्स क्या है? ओके, मेजरिंग द टाइम। टू मेजर टाइम इज टू मेजर द लेंथ ऑफ टाइम। अभी टाइम मेजर करना मतलब क्या? तो उसका लेंथ मेजर करना। ओके, वी नो द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम। आपको पता ही है यूनिट्स, हम लोग टाइम कैसे मेजर करते हैं? सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर एंड सेंचुरी एंड मिलेनियम। दैट मीन्स 60 सेकेंड मेक्स 1 मिनट, 60 मिनट्स मेक 1 आवर, okay, 24 hours make day, 7 days make week, 2 week make fortnights, okay, 30 days make month, okay, 2 fortnight, that means 2 fortnight make month, 12 month make year, 100 years make century and 1000 year makes millennium। Okay, that is smaller to bigger, understand? Okay, we know the following units of measuring time, ये आपको पता है। ओके, और सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस यूनिट्स। ये पता है आपको कि सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट इज द सेकेंड। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में अलग अलग मेथड यूज की जाती है। ऑफ दिस द कॉमन और क्रिश्चियन एरा इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। इसमें से सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है? क्रिश्चियन एरा और कॉमन एरा। वी जनरली इंडिकेट अ पर्टिकुलर डे बाय राइटिंग द डेट ऑफ दैट डे। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? पर्टिकुलर डेट लिखते हैं, ओके, और डे भी लिखते हैं। द डेट कंसिस्ट ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ दैट डे फॉलोड बाय द नेम और सीरियल नंबर ऑफ द करंट मंथ। आपको पता है हम लोग डेट लिखते हैं, डेट मतलब क्या? उस मंथ की डेट क्या है? द सीरियल नंबर ही समझो। आज 20 टुडे आई एम 1 डेट है 1 जुलाई। हाँ, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 27 जुलाई। आज क्या है? 27 जुलाई। तो टुमारो क्या रहेगा? 28 जुलाई। ओके, फिर 29 जुलाई। इस तरह से क्या होता है? हम लोग डेट को क्या करते हैं? लिखते हैं। वी जनरली इंडिकेट अ पर्टिकुलर डे बाय राइटिंग द डेट।
वो डे हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, डेट लिख के, ऑफ दैट डे. द डेट कंसिस्ट ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ that day followed by the name or serial number of the current month and the serial number of the current year. कैसे लिखते हैं डेट, आपको पता है डेट, हाउ टू वी राइट डेट. फॉर एग्जाम्पल आज का डेट क्या है, 27 इज द डे ऑफ दिस मंथ. ओके, आफ्टर दैट 7 मीन्स व्हाट, द मंथ, जुलाई मंथ, serial number, and after that we write the current year, that is 2020. Okay, like this. Understand? The date consists of serial numbers of that day. Okay, उस डेट क्या है, the date consists of the serial number of that day followed by the name or the serial number of the current month. After that current month कौन सा है, and then the current year. Okay, there are other methods too. यहाँ पे और भी मेथड्स हैं लिखने के लिए. वी हैव सीन दैट द क्रिश्चियन एरा बिगिन इन द मेमोरी ऑफ द जीसस क्रिस्ट. ये तो आपको मालूम है कि हम लोग क्रिश्चियन एरा कब से स्टार्ट हुआ है, जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ है. यहाँ पे दिखा है. ओके, जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद. इट इज़ एन एज ओल्ड कस्टम टू स्टार्ट अ न्यू एरा टू commemorable. It is an age-old custom to start a new era to commemorate a special events, as for example the coronation of a great king. We know that Chhatrapati Shivaji Maharaj had started a new era or शक. आपको पता है ये तो क्रिश्चियन के बाद हमारा कैलेंडर चालू हुआ है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे ये हुआ करते थे, न्यू एरा स्टार्ट करते थे. जैसे कि शिवाजी महाराज, द कोरोनेशन ऑफ द ग्रेट किंग. वी नो दैट छत्रपति शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड अ न्यू एरा और शक नोन एज, उन्होंने जो स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था, राज्याभिषेक शक, इन 1674 AD टू commemorate his coronation. Okay, Shalivan Shak and the Vikram Samwat are two eras that are used in India. Okay, the founder of Islam, Prophet Muhammad, migrated from Mecca to Medina. The Hijri era was started to commemorate. That means what, कि जब ये लोग आए, कौन, इस्लाम, द फाउंडर ऑफ द इस्लाम, प्रोफेट एंड मोहम्मद माइग्रेट फ्रॉम द मक्का टू मदीना. जब ये लोग मक्का से मदीना आए, माइग्रेट हो गए, तब हिजरी एरा स्टार्ट हुआ था. दिस इवेंट द पारसी कम्युनिटी इन इंडिया यूज द शहनशाही एरा. पारसी कम्युनिटी क्या यूज़ करती है, द शहनशाही एरा. ओके, then okay, understand this much. Okay, I complete here 2 points. Look here, the chart is given here. क्या चार्ट दिया है, important events in the life of the Chhatrapati Shivaji Maharaj, that is 1630 AD to 1680 AD. that is शिवाजी महाराज का बर्थ हुआ था 1630. ओके, वो तब स्वराज गया था 1645. आफ्टर दैट एस्केप फ्रॉम आगरा 1666, कोरोनेशन 1674 एंड उनकी डेथ हुई थी 1680. सीरियली है. ओके, अंडरस्टैंड. ओके, आई स्टॉप हियर. टुमारो आई विल स्टार्ट point 3 to point 3 historical period.